ଆସିଥିଲା। ଶୈଳବାଳା ମା ଜାଣିପାରିଲେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଗୁରୁ ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ଯଦି କିଛି ନା କିଛି ସତ୍କର୍ମ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଏ। ଏଇଟା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା, ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ସଙ୍ଗ କରିଥିବା ଆଜି ବି ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋପ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ମିରାକେଲ ନୁହେଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ, ସବୁ ଜିନିଷ ଲୀଳା କରିକିନା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ମା ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ନିହାତି ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ତ ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବସ୍ ମା ଠାକୁରଙ୍କର ଯିଏ ସେବା କରିଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, କିଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସେ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ପାଇ, ତାର ବି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ବସ୍ ମା ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଉଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସିଲେ, ସେ ବସ୍ ମା ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ବସ୍ ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର, ଯେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଛୋଟବେଳୁ ମାନେ ଖେଳେଇଛି, ବୁଲେଇଛି, କାଖେଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ କରିଛି ଏବଂ ତୁମ ସଙ୍ଗ କରିଛି, ତୁମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି, ମୋର ତ ପରିଣତ ବୟସ ହେଇଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବି ନାହିଁ? ବସ୍ ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପାଇପାରୁ ନ ପାଇପାରୁ। ବସ୍ ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଖେଳେଇଛି, ବୁଲେଇଛି, କାଖେଇଛି ଏବଂ କେତେ ତୁମ ସହିତ ଲୀଳା କରିଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇବିନି, ଏଇଟା କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେଲା? ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁ ନାମ କରି କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁ ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ପାଇବୁ। ମାନେ ତୁ ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ବି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁ ତାହେଲେ ପାଇବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନାମ କରି କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁ ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ପାଇବୁ। ମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ ଅଜପା ନାମ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଅନର୍ଗଳ ନାମ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ମୁଁ କହିବି। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କାହିଁକି ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା କରିବା? ଆଜି ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ କରୁଛେ, କେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆମ ଦାଦା ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ, ସେ ମାଟିର ଉଦାହରଣ ଦେଇ, ଭଲ ମାଟିରେ ଭଲ ମୁଞ୍ଜି ପୋତିଲେ ଭଲ ଗଛ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ ଭଲ ମୁଞ୍ଜି ଯଦି ଗୁଡ଼ି ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ ସେ ଗଛ ହୁଏ ନା। ସେଇଭଳିଆ ମାଟିଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ମାଟି, ତେଣୁ ତ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ନାତିମାନେ ଯଜ୍ଞ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ এই পরিপ্রেক্ষীরে এই যে গুরু গ্রহণ করি এইথিপাই যোগ্য হয়েছেন। গুরু গ্রহণ ন কলে কেবে বি কোনসি ভগবানଙ୍କର পূজা হুয়ে না, শাস্ত্র কুহে। তো এই যে আমার গীতারে লেখা হয়েছে যে সে অর্জুনকে কହୁଛନ୍ତି যে মতে অন্ন জল দিয়ে না, মতে ন দেই করি ভক্ষণ করে, সে চরর ভক্ষণ করে। এটা গীতার কথা। পুଣି ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା କଥା ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁର ଦୀକ୍ଷା ନେବୁନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥା ଗୁଡାକ ତ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିବନି। ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଥିଲେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ଦୀକ୍ଷା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶିବ। ଏବଂ ଶିବ କାହାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ? ଓಂ ବିଷ୍ଣୁବାୟ ନମଃ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଗୁରୁ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ। ଦୀକ୍ଷାଦାତା ଋତିକ କିଏ? ଶିବ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ପଶିବନି, ଗୀତାର କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଯେ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ, ମାନେ ଯଦା ଯଦା ହି ସେ ଧର୍ମର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲାନି ହେବ ମୁଁ ଆସିବି। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମଂ ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ च ଦୁଷ୍କୃତଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। তাহলে সেটা ক্লিয়ার করদেলে কৃষ্ণ কোন কলে যে যেতেবেলে যেতেবেলে গ্লানি হব মু আসিবি। খালি শ্রীকৃষ্ণ হি ভগবান কি? তা পূর্বরু কচ্ছপ অবতার নেইଥିଲେ, নরসিংহ অবতার নেইଥିଲେ, মৎস্য অবতার নেইଥିଲେ, বরাহ অবতার নেইଥିଲେ। সেমানে কোন ভগবান নুহନ୍ତି? কৃষ্ণଙ୍କ পূর্বরু 22 জন অবতার নেইଥିଲେ। পুଣି সেই গীতার কথা সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কହୁଛନ୍ତି সর্বধর্মম পরিত্যাজ্য মাম একং শরণং ব্রজ অহং তং সর্ব পাপম মোক্ষমাশুচম। মানে ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁ ମତେ ଗ୍ରହଣ କର। ତା ମାନେ କଣ ରାମକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା କହିଲେ ନା? ତୁ ଯଦି ମତେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ମତେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଯୋଉ ଆଗରୁ 22ଟା ଅବତାର ହେଇଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇଯିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା କୁହାହେଇନି, ରାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା କୁହାହେଇନି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପୂଜା କରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ସେଇ ଆଗରୁ ଯୋଉ 26ଟା ଅବତାର, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ 26 ଜଣ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇଯିବେ। ଗୀତାର କଥା। ମୁଁ ଯେତେ ବି ଗୁଡା ରହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରମାଣିତ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ଆଉ ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏନି ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ନିଅ, ରାମ ନାମ ନିଅ, ଯାହାର ବି ନାମ ନିଅ, କୌଣସି ଭଗବାନ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଗୀତାର କଥା କହିବି। ଦିନେ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ବସିଥାନ୍ତି।
पार्वती प्रश्न करुछंती जे प्रभु काहाकू पूजा कले 33 कोटी देवा देवी पूजा पाइबे। स्वयं प्रभु शिव कहउछंती जोटा गुरु गीता रे लिखा है कौन लिखा है जे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एटा तो हमें समस्ते जानिछे। ताले गुरु को पूजा कले ए विश्व ब्रह्मांडर जते भी देवता अछन समस्ते पूजा पाइबे। ताले गुरु के जे विश्व ब्रह्मांडर मालिक से होउछथि ब्रह्म। ब्रह्म के जे ए सृष्टिकर्ता ए विश्व ब्रह्मांड को जे सृष्टि करछथि से ही गुरु। सेति पे लिखा है परम ब्रह्म। ताले पुणी पार्वती प्रश्न करछथि गुरु गीतार कथा एपटू सेपटू आलोचना करू नै काहे कि बुझिबा पई सरल हबो। शिव को प्रश्न करुछंती पार्वती जे प्रभु कहार मंत्र मनीष जप करिवो। मंत्र मूल्यम गुरु वाक्यम कोठी लिखा है ठाकुर लिखिछंती ना गीता रे लिखा है कौन गुरु निर्देशित मंत्र जप करबा कथा कहैछे। आमे खाली श्री कृष्ण नाटा नै गले कोन आमे श्री कृष्ण आम पाखु आसीबे केबे नुहे। जोटा शास्त्र रे लिखा है सेही कथा मु कहूची जे मंत्र मूल्यम गुरु वाक्यम गुरु निर्देशित मंत्र गुरु जते पर्यंत ग्रहण करि नै से निर्देश केबे देबे ग्रहण कले ना निर्देश देबे। तेणु जेते बेले गुरु को ग्रहण करिवे सेते बेले निर्देश देबे जे एई मंत्रटा जप कर। जेते थोर आछंती स्वयं प्रभु श्री नारायण से सब बेले मंत्र नै गिरी आछंती। राम नाम आस्तिले कृष्ण नाम आस्तिले जेते बेले कृष्ण हेले राम नाम कोन छाडिबा कथा कहले ना कृष्ण नामटा होची बेसी पावरफुल। आमे जेते बेले छोट थिलु 200 mg रो पैरासिटामोल थिला आज 1000 mg रो पैरासिटामोल एइना जदि 200 mg रो पैरासिटामोल खाइबा कोन आमे बंचिबा केबे नुहे। तानि जेतेबेले जहा आछथि तार पावरटा बढ़ाइछथि स्वयं प्रभु नारायण एवं सेही मंत्रटा देइछथि सेही मंत्रटी जप कले बेनिफिट अछि। आ ठाकुर जो मंत्रटा देइछथि राधा नाम आज प्रेमानंदी महाराज भी सेही राधा नाम जप करूछथि। आज अनिरुद्ध आचार्य भी सेही राधा नाम जप करूछथि। एपटो सेपटो कोनोसी जिंस देइ नाहंती ठाकुर प्रत्येकटी जिनिस वेद वेदांत शास्त्र पुराण ऋषि ठाकुर देइछथि। सत्संग कोनोसी अलग संस्था नुहे। सनातन धर्म को जदि ठीक ठीक जने पालन करथाय से हला सत्संग सिस्टमेटिक मनोमाफिक नुहे। मुनि ऋषि माने ब्रह्म मुहूर्त रे उठुथिले उठिकिना गाधेइबे पई जाउथिले तर्पण करूथिले तर्पण माने सूर्य अर्घ एवं तांको भोग लगाउथिले। शिशि ठाकुर सेम विधान देले ब्रह्म मुहूर्त रे नाम ध्यान करिवा कथा एवं नाम ध्यान करि सारला परे शत अनुजा पढ़िवा कथा इष्टभूति प्रदान करिवा कथा। इष्टभूति साधारण जिनिस नुहे। प्रभु रामचंद्र एई कथाटा प्रचलन करथले इष्टभूति नुआ जिनिस नुहे। जेतेबेले रामचंद्र आसिले गुरुंकर आश्रम को गले एई जो वैशिष्ट गुरुंक पाखकु जेतेबेले शिक्षा लाभ करिवा पई गले 12 वर्ष रे जाइथिले सत्संग दीक्षार प्रचलन 12 वर्ष रे करिछि। नुआ जिनिस किछि नुहे। जेतेबेले गले गुरु आश्रम को प्रभु रामचंद्र तांकर काम थिला प्रत्येक दिन भिक्षा करिवा। भिक्षा काहा पई निजर भरण पोषण गुरुंकर भरण पोषण गुरुंकर भरण पोषण रो दायित्व छात्र मानकर थिला। 3टा रु 5टा घर से माने भिक्षा करूथिले एवं जहा आनुथिले गुरु माता को देउथिले गुरु माता रंधन करूथिले रंधन करी सारिला परे गुरु प्रथम खाउथिले तापरे जाई शिष्य माने सेटा होची इष्टभूति। इष्टभूति भोग कोनोसी टंका नुहे ता विनिमय रे आमे पैसा दउछे। आमे जेहेतु प्रत्येक दिन एते टंकार भोग लगै परिबा नै ठाकुरंक पाखरे तेणु तो ता विनिमय रे टंकाटे 2 टका 5 टका 5 टका रे की जिंस मिलबो नडिया गुटे मिलबो ना सेउ फल गुटे मिलबो 100 टका के माने 300 टका किलो हलाली 100 फुट आमे तो सेतकी लगे दया करी करी गुटे छोट मूल्य कर देले ठाकुर तापरे भी हम मुंड भितरे पसुने आमे भावचे पैसा पैसा नुहे इष्टभूति होची भोग। तेणु एई जो नामटा देइछन्ती एई नाम रो भी महत्व बहुत रहिछि। तो तापरे ए गीतार आउ टिके कथा कहबे गीतार आउ भी लिखा है जे मनीष काहाकू ध्यान करिवो। पार्वती प्रश्न करछथि मनीष काहाकू ध्यान करिवो ध्यानम मूल्यम गुरु मूर्ति गीतार लिखा है। एगुडा सब श्री कृष्ण कहिसन्ति गुरु गीतार कथा एगुडा एपटे सपटे जिंस नै काहाकू ध्यान करिवो गुरु को। आम चक्रफीट भितर काहार मूर्ति अछि गुरुंकर। शास्त्र बाहरे ना शास्त्र भितरे ठाकुर देइछथि विधान शास्त्र भितरे। पुणी काहाकू पूजा करिवो पूज्यम गुरु पादम सेटा तो लिखा हितांता गणेश पाद शिव पाद दुर्गा पाद लिखा हितांता गीतारे काई कि पूज्यम गुरु पादम लिखा हला। पुणी शेष प्रश्न पार्वती प्रश्न करूछन्ती जे प्रभु ए सब तो मु जानि गले जे गुरु को पूजा कले सब देवा देवी पाइबे किंतु मोक्ष केमिति मिलिबो। मोक्ष मूल्यम गुरु कृपा गुरु गीतारे लिखा हिछ। ताने मोक्ष केमिति मिलिबो जदि गुरुंकर कृपा होए। कृपा माने करे पावा माने पालन करिबा निज चरित्र रे पालन करिबा। जने 1000 देवा देवी को न मानु किंतु घरे जीवंत देवता को जदि से मानुचे ताले से सब किछि पाइ जिवो। ठाकुर को सेटा भी प्रश्न करा हेतला
যদি ঘরে যে জীবন্ত দেবতা কে বাপা মা শাশু শ্বশুর তাଙ୍କର যদি সে সেবা যত্ন করে সে ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତ ଏଇ ନାମର ମହତ୍ଵ ଟିକେ କହିବି। ଯୋଉ ନାମଟା ଆମେ ପାଇଛେ ତାର ମହତ୍ଵ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା, ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା ଗୋଟେ ଟିପବାଲା, ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରର ମାନେ ତାଙ୍କ ବଂଶର ଲୋକମାନେ କୂଳଗୁରୁର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉ କୂଳଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ରହିଛି, କୂଳ ପରମ୍ପରା, ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ 3 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କର ବଂଶର ଲୋକମାନେ ବାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁ ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର ବଦମାସ, ଆମ ବଂଶର ତୁ କଳଙ୍କ, ତୁ ଆମ ସହିତ ରହିବାର ତୋର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ତୁ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କର ବଂଶର ସବୁ ଭାଇମାନେ କୁହନ୍ତି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ କୂଳଗୁରୁ ଯୋଉଦିନ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ସେଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶବ୍ଦ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ବଂଶର ଭାଇମାନେ ସେଇଦିନ ତାକୁ ବାହାର କରି ଟାଣିକିରି ଆଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦାକୁ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଏ ଘରୁ ବାହାରିକିରି ପଳା, ତୁ ଏ ଘରେ ରହିବୁନି, ଆମର କୂଳର ବଂଶର ତୁ ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର, ଆମ କୂଳ ଗୁରୁର ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନି, କୋଉ ଗୁରୁର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ବଂଶ ପାଇଁ ତୁ ମାନେ କଳଙ୍କ। ତାକୁ ପେଲିକିନା ବାହାର କରିଦେଲେ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା ଭାଇମାନଙ୍କର ପାଦ ଧରିକିରି କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ? କହିଲେ ଯା ତୁ ସେ ଗାଁ ବାହାରେ ତତେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇଦେବା, ସେଇଠି ରହିବୁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇଦେଲେ, ସେଇଠି ଯାଇକିନା ରହିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି, କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ସେଇ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର କୂଳଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଡ ଦାଦା ବଡ ଭାଇ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କହିଲେ ଏଇ ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ତୁ ଏ ବଂଶର ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗା, ତୋତେ ମନା କରିଥିଲି ଏଇ ଗାଁ ଦେଇକିରି ଆସିବା ପାଇଁ, ତୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ଯେତେବେଳେ ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କହିଲା ତୋ ଗୁରୁ ତ ଜୀବନରେ ତୋ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦେଖ ବର୍ଷରେ ମୋ ଗୁରୁ 3 ଥର 4 ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ, ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ପାପୀଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ଗୁରୁ ତୋ ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦାକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦାଙ୍କର ଏବଂ ସେ ସେଇଦିନ ହିଁ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଠାକୁର ମୁଁ ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ଆପଣ ତ ମୋ ଘରକୁ ଦିନେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ନିବେଦନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିବେଦନ ଯେତେବେଳେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେ କୋଣରେ ବସିଛନ୍ତି। ବସିକିନା ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଇ ଶ୍ରୀପତି କ'ଣ ହେଲା ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ଘରେ ଯୋଉ ବଂଶର ଭାଇମାନେ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ କାହିଁକି ରେ? କହିଲେ ବର୍ଷରେ 4 ଥର 3 ଥର 4 ଥର କୂଳଗୁରୁ ଆସନ୍ତି, ଆମ ବଂଶର ଭାଇମାନେ ତାର ପାଦ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ପାଦର ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଳାନ୍ତି। ଠାକୁର ଆପଣ ତ ମୋ ଘରକୁ ଦିନେ ବି ଗଲେନି, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲି ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ କରେ। ଠାକୁର ଚଟ କରି କହି ପକାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଶୁକ୍ରବାର ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲୁ, ପେଡ଼ା ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ଖଜୁରୀ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ବାତାସା ଦେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଖାଇଛି। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା ଭୋଗ ହୋଇକରି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। କହିଲେ ଠାକୁର ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ପେଡ଼ା ଭୋଗ ଦେଇଛି, ଖେଜୁରୀ ଭୋଗ ଦେଇଛି, ବାତାସା ଭୋଗ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଠାକୁର କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ? ପୁଣି ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ପଇଡ଼ ଦେଇଥିଲୁ, ପଇଡ଼ଟା କାଟି ନଥିଲୁ, ସେଠି ମୁଁ ପିଇ ପାରିଲିନି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଜାଣିଛୁ ନା? ତୁ ଏଥର ଯେତେବେଳେ ପଇଡ଼ ଦେବୁ ତା ମୁହଁଟାକୁ କାଟିଦେବୁ ଏବଂ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଢଙ୍କେଇ ଦେବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପିଇକିନା ଆସିବି। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା ଭୋଗ ହୋଇକରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ତୋ ଘରକୁ ଯିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ରେ? ସେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପୁଣି ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦଉ? କହିଲେ ହଁ ଠାକୁର ଦିଏ। କେତେବେଳେ ଦଉ? ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଠାକୁର ଦିଏ। କହିଲେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦଉ ନା, ମୁଁ ତୋ ହାତରୁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ ରେ, ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରାଣ ଭରି କରି ଦେଖେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏବଂ ତୋ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଆସେ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ଆଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା ମୁଁ କେତେ ଅଧମ କେତେ ମୂର୍ଖ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୋ ଘରକୁ ଯିବି? କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇଛି, ଉଷା ନିଶାଇ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲା ଫେରାଇ ଜବ ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂର୍ତ୍ତ କରାଇ ତ, ଏଇଟା ତୁ କରୁ ତ ସବୁବେଳେ ନାମ ଜପଟା କରୁ, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁବେଳେ ନାମ ଜପ କରୁ ତ? କହିଲେ ଠାକୁର କରେ, ବେଳେ ବେଳେ କାମ ଭିତରେ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ। କରେ ଯେ ତୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ କରୁଥାଉ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ଥାଇ ରେ, ତାହେଲେ ତୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି? କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। এই হচ্ছেন শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। আমি সেই নামটা হি ভুলি যাও, আমি 24 ঘন্টা নামটা জপ করু না, আর নামর মহত্ব আমি জানি না। নামর মহত্ব যেতবে স্বয়ং নারায়ণ জন্ম নেইকি আসছেন পুরুষোত্তম অবতার নেইকি, নামর মহত্ব পুরা রয়েছে।
आम ये नाम ना जाने जिते किसी किसी दुख आसी जाए जंत्रणा आसे कष्ट आम से देवघर को जाऊ नवेदन करने आचार्य देव पाखे जे प्रभु आमको रक्षा कर किंतु आम नाम ठीक जप करूना ठाकुर विधान पालन करूना किंतु आम सब आशीर्वाद चाहूँ। दिने आमर सतीश चंद्र गोस्वामी से गोटे बहुत बड़ साधक थे बहुत बड़ गुरु थे परवर्ती मुहूर्त में से ठाकुर चरणाश्रित सी होती आई भाया जड़े भक्त विराट भक्त नातींकर देह खराब नातींकर जिते देह खराब माने झीर पुओ देह जिते बहुत असुस्थ देखा करने देखा करने झील को जी बापा टे ठाकुर पाखे मो पुओर कथा टे नवेदन कले हुआ नहीं 15 दिन है बेड्रे पड़ी तार हाथ गोड़ चलू ना सब पूरा मुह भी ठीक भाव में खाई पार ना कौन हम कौन ना कि जापार ना टे ठाकुर पाखे नवेदन कले हुआ नहीं सांगे सांगे सतीश चंद्र गोस्वामी कहले खाली नवेदन 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 ठाकुर जो बीज मंत्र देछन तार कौन किसी भैल्यू नहीं तुम्हें नाम करिवो नहीं खाली नवेदन जिते बेले खाली पाइबा पई आशा करिवो किंतु तुमर कर्मटा सब बेले गलत यही कथा जिते कहले झील दुख प्रकाश कले मो बापा को कहली मो पुओर नवेदन कथा किंतु देखिला बेले बापा मते कहते ठाकुर नाम करवा कथा तो जहाँ भी हो से समय कौन है सतीश चंद्र गोस्वामी आसछन्ति ठाकुर पाखक जिते बड़े सतीश चंद्र गोस्वामी आसछन्ति ठाकुर पाखक ठाकुर को प्रणाम प्रणाम कर बसी से समय कौन है प्रणाम कर समय देखुं सामने किशोरी मोहन अच्छा जिते सामने किशोरी मोहन अच्छा हठात मन पड़गला अरे किशोरी मोहन को मो जदि नातीकर धरिकिना नाम करे ताहले मो झील बोधे विश्वास कर नाम उपर मो झीर बोधे विश्वास नहीं किशोरी मोहन को डाकिले कहले किशोरी तू जा मो झील घर को मो नातीर देह बहुत भीषण खराब एवं तू सेठी जाइकरी मो नाती को 3 घंटा धरिकरी नाम करिवो एवं कीर्तन मंडली नहीं करी जीवो नाम संकीर्तन करिवो गले से किशोरी मोहन से जाइकिना से छोट छुआटी को धरी से भीषण से खट चारि पाखरे तांकर ग्रुप बसिकिना नाम कले এই नाम करू 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 3 घंटा पर उदंड कीर्तन आरंभ कले এই कीर्तन आरंभ करू करू देखा जाइछि थकी पड़ी जेतेबेले किशोरी मोहन बसी जाइछन्ति सेतेबेले से छोट पिलाटी उठी कर ता मां को भीषण पाटी कर मां मते बहुत भोक लागुछि मते खाइबा पई दे ताको झियो से पाखरे बसी थांती आखि बुझिकिना से हठात देखुछन्ति अरे मो पुओ तो बसीछि एटा केमिति संभव होला मो बापा को कथा मानु नथिले जे नाम रो महत्व की सांगे सांगे को खाइबा पई आनिकिना देछि एवं से भो भो होई कांदी आमे ए नाम रो भेल्यूटा ए मूल्यटा आमे बुझी पारुना तेणु 24 घंटा जिते आम नाम नेबा ए नाम भीतर आम ग्रह दश दुख विपत्ति जंत्रणा केते बेले भी आसीबो नै केते बेले भी आसीबो नै तेणु सब बेले कहै मृत्यु समय रे जिते बेले आम नाम करी करी मृत्यु को जीवा सेते बेले से निहाती से परम पुरुष पुरुषोत्तम सानिध्य लाभ मिले आम जिते बेले जानी पारू जे तांकर मृत्यु होउछि बहुत गुरु भाई बा तांको परिवार लोक से खट धरी करी नाम करते भीषण नाम करते जिते बेले निरुपाय हो जाते सेते बेले नाम करते कहीं जे सेई आत्मा सेई धाम को जीव से परम धाम तेणु तो नाम करिवार आवश्यकता रही नाम रो महत्व केते गुरुत्वपूर्ण तेणु ये जो आज जो परम पुरुष पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ये धराधाम को आसी कहीं आसते ये परिवार को श्रृंखलित करने ये परिवार को वैकुंठ केमिति परिवार श्री ठाकुर चाहिए रामायण गोटे कथा कहबी जे से दिन भरत आसुचंदी वैशिष्ट सहित गुरु वैशिष्ट सहित रास्ता नंदीग्राम पड़े ए नंदीग्राम रे जेते बेले ताकर पूर्वज अज बळी भागीरथी एमने जो पूर्वज तांको आरती करुथिले भरत आरती करू करू दशरथंकर मूर्ति देखि पाइले हठात तांको हाथरु ए माने आरती थाली पड़ीगला परे देखते बापांकर मृत्यु केते बेले हला गुरु को पचार गुरु वैशिष्ट को सेटा कहले तुम बापा ये किछि दिन पूर्व तांकर देह त्याग हो जाइछि कहले काहे कि कहले तुम मां कैकेयी से दीटा बर पई प्रतिज्ञा करथिले तुम बापांक पाखरे एवं से बर दीटा मागिले जे तुम्हें राजा हबो एवं तुम भाई बण को जीवो यही कथा जिते बड़े शुणिले सीधा दौड़िले माँ को पाखक माँ को गड़ धरिक भीषण कांदिले कांदी कांदी कहले मो भाई होचंती देवता मो भाई होचंती बड़ भाई एवं तुम्हें ताकू बण को पठेदेल और मते राजा करिवो मु कदापि राजा हेबी नहीं समस्त को कहले तुम्हें समस्ते मो सहित जीव भाई को फेरे आनिबा गुरु वैशिष्ट विश्वामित्र सीतांकर बापा तीन माँ समस्ते राम को फेरे आनिबा पई गले भरत कठौ धरिकिना मुंडरे चलिले माने चिंता करंतु आज हाथे जमी पई भाई भाई भीतर हाणकाट हो जाउची केस माली मकरदमा हो जाउची
किंतु केमिति भाई हेबा कथा शिशि ठाकुर केमिति भाई हेबा कथा से ए रामायण रु आमे शिखबा। रामायण तो समस्तंकर मुखस्थ अछि, भागवत तो समस्तंकर मुखस्थ अछि, गीता तो समस्तंकर मुखस्थ अछि। आज टीवी रे देखु जे आमे जुक्ति तर्क चली छी भागवत गीता को लेकर बड़ बड़ पंडित, आचरण काहे आचरण काहे ए आचरणटा शिशि ठाकुर को धरिले शिखिबा पई मिले, ता छड़ा कहीं दे पारे नहीं। तेणु ये आचरणटा आवश्यकता रही है। आम रामायण पढ़ा राम चरित्र आम भितर देखा दरकार, लक्ष्मण चरित्र आम भितर देखा दरकार, भरत चरित्र आम भितर देखा दरकार। जिते भाई को कहते जे भाई तुम चल गुरु अच्छा तीन तीन माँ अच्छा सीता बापा अच्छा रामचंद्र गोटे कथा कहले जे मु पितृ सत्य पालन करी पिता पुत्र संपर्क केमी। आज जदि बापार देह असुस्थ हो जे पुओ को कहु बापा मत नहीं चलना हस्पिटाल कहले मोर ऑफिस टाइम हो गला तुम्हें गोटे टेम्पू भड़ा कर गले हेबनी माने केमिति पुओ आज देखा जाउछि। तो चिंता करंतु एई जो भल पाइबाटा खाली आमे रामायण देखुचे महाभारत पढ़ुचे कि लाभ कौन अछि जदि हमर चरित्र से भलिया होउले। फटोरु केबे बाहरी करी भगवान काहारी को रक्षा करिवे नै। केते तीर्थ व्रत करिवा पई जाउछथि बड़ बड़ गाड़ी धरिकिना से माने एक्सीडेंट हेइ करी मरुछथि कि नै। केबे भगवान फटोरु बाहरी करी काहारी को बंचै जते ना तांकर चरित्र चलन जदि आम भितर देखा जाए ताहले आमे बंचिबा। हमको अनुभव हबो जे हमर जेतेबेले विपद आसीबो आमे फील करिबा। किंतु सेइटा काहे जेतेबेले से फेरी आसिले नै से दिन मध्य रात्रि रे देखुचंदी कैकेयी सुमित्रा एमनी सब देखुचंदी जे छात उपरे गुडे के झियो पिलाटी बुलुची। चिंता करूचंदी छात उपरे तो केही दास दासी थिबे नै, केही तो मनीष थिबे नै, एगुडा किए जेतेबेले जाउचंदी देखुचंदी मांडवी से होचंदी भरतंकर स्त्री। जेतेबेले मांडवी कहते जे मां तू छात उपरे काहे की बोलुछु सेतेबेले से कहउचंदी जे मो स्वामी सुई नाहंती तेणु ए छात उपरे अपेक्षा करिछि। तो जदि सुई नाहंती ता रूम को जाउनु से कहले नाही एठी नाहंती तारे अछंती कोठी से नंदीग्राम रे से करूछि कोन मो पुओ से नंदीग्राम रे गोटे कुड़िया घर बनै सेठी रहिचंदी। से जाई देखले जे भाई खाली पादरे चालुचंदी बकळ पिंदिचंदी फळमूळ खाउचंदी। से तद्रूप से नंदीग्राम रे गोटे घरे कुड़िया घरे रही से सेई भलिया बकळ पिंदी फळमूळ खाई से राज दरबार काम करूचंदी। आश्चर्य होई गले कहि के ताले सेतेबेले पचारे तू केमिति जानलु तो स्वामी सुई नाहंती जे देखो मा सेठी गोटे दीप जळुछि जेते पर्यंत लिभि नै मो स्वामी सुई नै। मु जदि सत्संग टिके लेट है फेरवा 12टा गोटे है मो स्त्री खाई पीकिना शुई पड़ी। मांडवी को यही रामायण आम पढ़ा दरकार से चरित्र गुड़ाक आम भर देखा दरकार। जिते पर्यंत स्वामी शुई ना से पर्यंत स्त्री जगिकिना रही। देखो स्त्री चरित्र केमी पुणी पचार कही तू गलुनी तो स्वामी पाखे रही केते गुरुत्वपूर्ण कथा कहले जे मो स्वामी कहले घरे सीता माँ नहांती घरे तीन तीन माँ तांकर सेवा जत्न करिवार दायित्व तुमर। एमिति बहु मिलिले केबे नुहे। खाली टे आमे रामायण देखुचे पढ़ुचे मुखस्थ करूचे ए रामायण भितर केते गुरुत्वपूर्ण कथा गुड़ाक कहीं से भलिया बहु शाशु मानकर सेवा करिवा तांको कथा मानिबा तांको गोड़ घोषी देबा तांको लुगा काची देबा कहीं ताले पुणी जेतेबेले कैकेयी कौशल्या सुमित्रा गले तांको पुओ को देखिबा पई शत्रुघ्न बसिचंदी कोଳରେ मुंड देई भरत अछंदी शत्रुघ्न आउंसी दउचंदी भरतंकर मुंड को सोई दउचंदी। एमिति कोन भाई आज देखिबा पई मिलिबो सानो भाई बड़ भाई को सोई देबो ए तो मारपीट लागि जाउचंदी। एइथि पे ठाकुर एई भलिया परिवार चाहिचंदी जे रामायण रे जहा जहा हमें पढ़िले सेही तो प्रभु रामचंद्र ही अवतार करी लीला करिथिले सेही पुरुषोत्तम। तो तेणु पूर्व अवतार जहाँ जहाँ करते देखो से जिनस गुड़ाक जब आम आउ थे पढ़ू ताले से भाया चरित्र तो हवा दरकार। तेणु यही गुड़ाक आम शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र को धरी आम केते जिनस शिखुचे विधि विधान नियम नीति निष्ठावान। आज किंतु आम परिवार गुड़ाक परनिंदा परचर्चा हिंसा देश आम भितर युवाक सब भर्ती होना रही। आम भितर जदि आम जी शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र को धरी से तरी जाइए से जहाँ भी अवस्था था मत जो झारखंड रे प्रश्न कले जे दादा सत्संग सब धनी लोक मैंने अच्छा मुझे धनी लोक कहीं ना सब गरीब थे ठाकुर को धरी धनी हो जाती ठाकुर को धरिकिना धनी होती यही कथाटा मुझे तार जीवंत गोटे उदाहरण शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जड़े परम भक्त जड़े थे दुर्गानाथ सरकार घर कलिकता दुर्गानाथ सानियाल अलग दुर्गानाथ सरकार अलग। दुर्गानाथ सरकार से बहुत मद्यप डेली मद पियंती एवं सी बहुत खराब काम भी करती।
तो दिनकर घटना कौन है जो मद पिंदी सी तो दीक्षा नहीं ठाकुर मद पीवा सत्वे दीक्षा नहीं दिने मद भाटी जो मद खाऊँ सांगसाथी मैंने सब धनी धनी सांगसाथी मैंने ठाकुर बदनाम कर ठाकुर बदनाम कर समय हठात यहाँ बहुत कष्ट लगी मो ठाकुर मैंने बदनाम कर ठाकुर को एक कथा जाइना कहि तार दिन कौन कर खोज खबर नहीं ठाकुर कौटी अच्छा जना पड़ा जे काली कलिकतार माणिकताला को ठाकुर आसबे कहले मु जीवी आ देखा करी तार दिन कहले मु ठाकुर को ये खराब कथा गुड़ाक कहबी केमी सांगे सांगे से चिंता कले मद टे पीदेले ये खराब कथा गुड़ाक मुहर ऑटोमेटिक बाहरी जीव गले मद भाटी पूरा मद पीले 20 पर्यंत मद पीदेले कहले बेसी न पीले तो बाहर खराब कथा गुड़ाक पीकिना गले ठाकुर पाखक ठाकुर पाखे जो पहुंचुंट बहुत भिड़ भीषण भिड़ होती ठाकुर को प्रणाम कर समस्ते ये जीवे केमिति ये तो मद पीछे ठेली पेली होकर पशिगले जमी ठाकुर को प्रणाम करेंगे कहते ठाकुर बांती कर पकड़े जिते बांती करते थे सब गुरु भाई मैंने कलर को धरिक टाणी पिटापी खोजुंट से समय ठाकुर को जाए थाम तो ना कौन रे ठाकुर मो ना हूँ दुर्गा नाम तू जो मो देह उपर बांती कलु ये लाड़ गुड़ा जो पड़ी के सुंदर बासना होची जानिछु ना किंतु गुरु भाई मैंने जिते सब बसुँच से नाक चुंटी एत खराब बासना हो ठाकुर से दुर्गानाथ को कहते लाड़ गुड़ाक मो देह उपर जो पड़ी के सुंदर बासना ही जानछु ना काली तू पुणी आसबू मो देह उपर बांती करू ये भक्त मैंने आश्चर्य कहले ठाकुर ये लीला कौन सी कले तार दिन जिते हूँ सी सका उठी स्त्री को कहते ए मोर टे लुगापटा गुड़ा कर दियो से कहते कहीं कोर्ट को जीव कि से कहले मो ठाकुर को दर्शन करने कहीं जीव से कहले मुझे दर्शन करने जी मुझे काली थी तुम पाखे तुमको गुरु भाई मैंने पिटापी खोजिले पुणी से जीव तुम्हें दुर्गानाथ सरकार गोटे मधुआ हेले भी केते गुरुत्वपूर्ण कथा कहले मोर ठाकुर होचंदी मोर आदर्श ठाकुर होचंदी मोर जीवन कांडारी गुरु भाई मैंने सेना पिटिले गुरु भाई मानक मु कोन नहीं करी चलिबी मु चलिबी ठाकुर को नहीं करी आज जदी सत्संग रे काहे टिके मनमाणी न होई गला तार दिन इष्टभूति छाड़ दउछे सत्संग जीवा भी बंद कर दउछे किंतु दुर्गानाथ सरकार केते गुरुत्वपूर्ण कथा टी कहले मोर पुरुषोत्तम ए विश्व ब्रह्मांडर मालिक मोर कांडारी होचंदी श्री ठाकुर गुरुचंद्र तेणु सी डाकते मुझे गले जिते जा पहुँचले देखुं आ कहीं लोक ना कबाट ठक ठक कले जड़े माँ बाहरी किना कहते ये कहीं आसते से कहले नहीं ठाकुर को दर्शन करने कहले ठाकुर ना कहले आप काली आसते ना कहले हाँ आसी तुम ठाकुर बांती कर हाँ बांती करी गेट आउट आज मु ठाकुर से पंजाबी आ धोती मु सफा करजे बांती कर पकाऊँगी आ तुम टे लाज नहीं काली आसी ठाकुर पाखे बांती कर पकड़ से कहले मुझ तुम सहित कथा हेबी नहीं ठाकुर कौटी अच्छे कहतु कहले ठाकुर पलैले देवघर को बोधे थी पारती हावड़ा स्टेशन रे भक्त आ भगवान व्याकुलता भक्तर जे दर्शन करेंगे एवं काल विलंब न करिकिना सीधा दौड़िले रास्ता रे गोटे टैक्सी पाइले बसिले हावड़ा स्टेशन पहुंचले पूरा खोजुछंती कौटी एते बड़ हावड़ा स्टेशन खोजुछंती किंतु आ पाइले नहीं ठाकुर तो अंतर्जामी ट्रेन रे बसथिले गेट को बाहर किना ए दुर्गानाथ एखाने आसो जेतेबेले हाथटा देखै जदी दौड़ी छंती दुर्गानाथ जेतेबेले दौड़ी किना आसिकिना ठाकुर को पाखरे पहुंची जदी ट्रेन छाड़ी देछि ठाकुर हाथ बढ़ाई छंती दुर्गानाथ को उठै छंती एवं बसै छंती एवं बसई सारिला परे से पाखरे तापरे ताकु नै जाई छंती देवघर कहले तू जदी आनंद बाजार खाइबो आनंद बाजार खे आरंभ होईछि मद खाइबा छाड़ी जाईछि ताको किछि दिन परे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सहप्रति ऋतिक पांझा देइछंती एई होउछंती श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आज जिते भी मनुष्य श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र विधान को पालन कर निज जीवन चरित्र पालन करछंती से सब तोड़ी जाइछंती एई होउछंती ठाकुर टाइम अछि ना दादा तो जा भी हो ये जो मैंने उपस्थित अच्छी अनुपस्थित अच्छी आज जार उद्देश्य आज सत्संग से परिवार शतायु हो दीर्घायु हो चिरंजीवी हो एवं श्री ठाकुर बहन करना चलू एवं जो मैंने ये उपस्थित अच्छे अनुपस्थित अच्छे समस्त पंच महाजीवन इष्टिपुत समस्ते शांति सुस्थिरमय जीवन यापन करूँ ये मोर वक्तव्य शेष कर जय गुरु।